The views and the opinions expressed by our guests are purely their own, shaped by their unique life experiences and personal biases. While we value their perspective, they do not necessarily reflect those of the boardroom or strategy. We invite listeners to engage with an open mind. Initial journey wasn't that easy for me. Like job, entrepreneurship is daily struggle. It's like 24/7 job. पार्टनरशिप में आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो आपको डर रहता है कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर पीपल आल्सो. I was working as an employee, and when I started my own venture, things were not the way I expected them. So when you left your job, was your family supportive at that time? Were they okay you leaving a job, a stable, high-paying career, good future? In entrepreneurship, there is no Monday, there is no weekend. So every day is working day. I was under impression that I knew something about business. But when I entered into business, I came to know I know nothing. You have to be in your game. You cannot just say, okay, this is weekend. It's not my worry now that, next let's see on Monday. कितना डिफिकल्ट होता है पार्टनरशिप में बिजनेस करना जब आप एक इंडिविजुअल सोलो प्रोप्राइटरी एंटरप्रेन्योर होते हो या सोलोप्रेन्योर होते हो तो आपके डिसीजंस होते हैं, आपके मिस्टेक्स होते हैं, आपकी ओनरशिप होती है. No, my father, my mother, definitely they were not happy. They knew like what is the importance of studying. I used to get frustrated because you are sitting in AC, you have team under you working for you. From there you switch to a journey where everything you have to do. As a finance person in the organization, this investment that you made, how do you see, how do you calculate the ROI? So they were not at all happy for me that I was leaving this job. And then I just told them कि यार वो तो निकाल ही रहे थे वैसे मुझे भी निकालने वाले थे. Welcome to yet another episode of Boardroom with Anuj Agarwal. Today in my boardroom, we have a very dear friend as a guest, Rujit Meher. Rujit is a partner in a company called Ethics Softcom. Rujit started his entrepreneur journey after his experience in mainframe technology. He was in Canada with HSBC Bank for several years. Then he started his entrepreneur journey. I got to know Rujit when he started his first enterprise as a consultant. Then he later joined Ethics Softcom and became a partner in it. Ethics is a software company which is mainly into Oracle implementation, support and consultation and other managed services around IT. Let's welcome Rujit. Hi. Hi. Rujit, welcome to the boardroom. We have been knowing each other for a long time now. I understand your journey. We started with your business vertical where I was consulting you, and at that time you were new to entrepreneurship. How has been your journey in entrepreneurship as an entrepreneur till now? Okay, yeah. So as you mentioned, I worked in HSBC for quite a long time. It's more than 12 years, and then it was kind of monotonous to do the same things again and again. And plus, I belong to kind of business family, so it was in my DNA to start something new, and that's what I started. But initial journey wasn't that easy for me because I was working as an employee, and when I started my own venture, things were not the way I expected them. And after certain failures, I tried different verticals like biological used plates I sold. Then I sold some chemicals to sugar factories. Then I came into honey business where we met. And then I went back to tech world because after failing several times, I understood this is not my ball game. So better go to home pitch and try something in that area. So our viewers and a lot of our viewers would be doing jobs and aspiring to become entrepreneurs.
how difficult it is to leave a stable job and get into entrepreneurship. Tech careers are high-paying jobs. You were in Canada. You were in a very niche vertical. So, how difficult or how easy it was to leave the job and get into this volatile environment of entrepreneurship? Yeah, actually, to be frankly, when you're doing a stable job for a prolonged time, then you go in your comfort zone, and then it's very difficult because you are somewhere in middle of your life where you are stable, you are having a very steady income, and that's like a good income you have, considering the Indian market. And then when you shift or when you want to go to entrepreneur journey, then it's very difficult because then you enter the world of uncertainty. You don't know whether tomorrow you will be able to bring bread and butter to your home. Correct. So that kind of instability. So मेरे को याद है जब हम इनिशियल एज पे कंसल्ट कर रहे थे सो a lot of times you used to say यार जॉब ही अच्छा था सो ये थॉट तो बार बार बाद में आता है तो आज जब जॉब छोड़ के इतने साल हो गए और एंटरप्रेन्योरशिप में इतना सारा कर चुके हो सो टुडे हाउ डू यू सी आर यू हैप्पी टुडे लिविंग द जॉब एंड डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप? Yeah, definitely. Because entrepreneurship is tough until you get the gist of your success. That till then you find it very difficult to sustain. But once you get even a small success, I think then the things turn around. Then you get that confidence. But unlike job, entrepreneurship is daily struggle. It's like 24/7 job. You have to be in your game. You cannot just say, okay, this is weekend. It's not my worry now that, and next let's see on Monday. So in entrepreneurship, there is no Monday, there is no weekend. So every day is working day. So when you started your entrepreneurship journey, when you started your early few businesses, it's okay, it failed, but there were what were the value systems, what guided you to deliver or start a business? What were the values that inspired you to get into entrepreneurship? Yeah. So as I mentioned, I belong to a family who is into business for generations, and that was one of the key, I would say, trigger for me. Then I saw people. So if you are in a job, you grow like with a steady graph. But if you want to grow exponentially or something, like this graph you want to go, so that time only entrepreneurship can take you to that stage. It's like, yeah. So that's what I was thinking. So you came into entrepreneurship more looking towards an exponential growth. You wanted to, instead of linear curve, you wanted J curve kind of activity. Yeah. Because I felt that I have that advantage where there's already certain platform is available for me. So I don't want to build from zero to there. That was one thing. Second, I have a good support system. So I was confident that even I fail or I'm not able to earn, there's my family, my cousins. So you had a backup plan, or you had some leverages that you could take. Yeah, definitely. I had that cushion to cash. So when you left your job, was your family supportive at that time? Were they okay you leaving a job, a stable, high-paying career, good future? No, my father, my mother, definitely they were not happy because they knew like how it's. Because what is the importance of steady income? Okay. So they were not at all happy for me that I was leaving this job, and then I just told them कि अरे वो तो निकाल ही रहे थे वैसे मुझे भी निकालने वाले थे तो that's why I left. So I think that somewhat Shaped you. yeah. So
when you started, जब आपने entrepreneurship जो है कभी easy नहीं होती है, right? आप जब start करते हो तो आप काफी difficult time से करते हो. जब initially जब आप when you came into entrepreneurship, were there some inner conflicts within you कि you had your family not supporting you, you had a high paying job that you left, you came into entrepreneurship का आपको बहुत कुछ पता नहीं है. तो जब आपने छोड़ा तो वो अर्ली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या थे, आपको पहले ऐसे क्या दिमाग में या क्या चैलेंजेस आ रहे थे जो आपको ऐसा लग रहा था, एंड वर यू रीथिंकिंग टू गो बैक टू योर ओल्ड लाइफ और यू स्टिल वांटेड टू बी इन इट? या तो जब मैंने जॉब छोड़ा, दैट टाइम आई was under impression कि I knew something about business. But when I entered into business, I came to know I know nothing of the business world. And I used to get frustrated because, you know, you are sitting in AC, you have a team under you working for you, and from there you switch to a journey where everything you have to do. Because initial days as an entrepreneur, you cannot afford people to work for you. You know, it's like a solopreneur. My journey was a kind of solopreneur. So I have to use, मतलब मैं खुद वो वजन उठाता था, 4 मंजिलें चढ़ के लेके जाता था, उसको रखता था. So I used to get frustrated कि ये मैं कहाँ गया और why I'm doing this all nonsense. But I never thought going back to my previous, you know, job or anything. So I don't know why, पर वो कभी मेरे मन में आया नहीं कि अरे चलो छोड़ो और वापस नौकरी करो. So what were the early businesses that you tried, and what all things you did? What was your early entrepreneurship journey like? Yeah, so I started with the business of biodegradable plates or disposable plates. Then it wasn't, I don't know, maybe it was a bit early or they were expensive, so I didn't got the traction, and there was a lot of plastic plates. There was no plastic ban till now, so तो इसकी वजह से वो इतना ये नहीं हुआ. I understood that you know, this is not the business. Maybe the market at that time. Market or my or maybe I was targeting the wrong market. I don't know. तो वो एक बार फेल होने के बाद फिर I tried some selling some chemicals to some sugar factories. तो वो भी एक unknown territory था मेरे लिए totally. Okay. Which I don't know anything from the chemistry or anything. I just saw an opportunity. I tried to jump it, and then I found. So that was the mistake I made. You know, I became opportunist rather than a guy with a clear mindset and know what he has to do with Okay. the journey. So you saw early opportunities and you jumped into business, and then you realized that maybe there's a lot into it to know before you get to do. So वो कहते हैं ना कि you know, there is a problem, you have to solve it and all these things. I think that's a bit nonsense if you don't know How to solve it? How to solve it. Exactly in depth you have to solve it. Yeah. So you cannot just go and start solving any problems. So you have to be very much aware technically or economically or socially. You should be aware of that problem, and you should have right mindset, right people to solve it, who can help you to solve it. So I did that. Then I was like, then my brother-in-law, Mr. Rohan Godle, who is a founder partner in ethics, he asked me if we want to come and join ETHX because he knew that I am from a tech background. So he kind of offered me a chance to come back to a tech world. And our other partners, Ram Chaturvedi and Virendra Kumar. So they were doing good. I mean, they were, ethics was basically their baby. And so they found, so I will give you the good example of how a successful business can build. So they were working in IT. They saw like how companies are hiring contractors
from the market, and they're getting good pay. The companies, not the contractors. So these guys saw the opportunity in that. They made good connect, and they came out of that organizations and they started providing the resources because they knew the technology, they were experienced, they had good connect in the market. So the turnaround time to bring resources on board was So they very were fast. on the other side too, so they know what the company needed. Yeah, what the market needs. What they Yes. expected from the contractors. Yeah, and they had good connect with the contractors. They knew they had the talent pool, and so that's why it became, the business grew fast. So that is the one thing, as an entrepreneur or as a new venture, if you want to come into the venture, तो आपको ये exactly market का जो एक जैसा बोलते हैं बायर maximum- सप्लायर हाँ। का एक पता होना चाहिए कि बायर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका सप्लायर suppliers क्या है, तो उसका जो फ्लेवर, यू शुड अंडरस्टैंड द फ्लेवर ऑफ द मार्केट. तो अगर वो आपका सही रहा, देन आई थिंक सो यू डोंट स्ट्रगल दैट मच इन द बिजनेस इफ यू हैव दैट. तो ये अंडरस्टैंडिंग उनको काफी अच्छा था. एंड उसमें से सिर्फ रोहन वाज अ प्रीवियस who did some ventures long time back. बिजनेस एक्सपीरियंस. Yes, but Ram, Virendra, they were like very new. तो उन्होंने, पर जिस तरह से उन्होंने टीम बिल्ड की थी और जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल कंपनी को सेटअप किया, रन किया, आई थिंक दैट वाज अ गुड एग्जांपल एंड दैट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बी ऑन बोर्ड. तो इस तरह से फिर आई केम बैक टू टेक वर्ल्ड. तो now the value that I added was being into business world, got some good connects with you, like personal people like you, Ashok Saraf and all the side. So I knew like अगर आपकी कंपनी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए you have to have some team. So they also agreed. We had quite brainstorming sessions to bring people on board. तो उस टाइम पे हमने फिर बाहर से प्रोजेक्ट्स लेके आने का भी ट्राई किया था, बिकॉज रिसोर्सिंग और मैनेज सर्विसेज इज वन पार्ट, बट दैट्स नॉट अ वेरी सस्टेनेबल और high paying, or you have to depend on those people to give you the requirements and then you start. So it kind of you depend on the market too much in that. Okay. तो फिर एक प्रोटोटाइप बनाया था राम और वीरेंद्र ने, एक पोर्टल का, तो विच ऑप्टिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ द लाइसेंसेस. तो एक अच्छा लिंक मिला, फिर वहाँ से हमने एक 7-8 महीने तक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत So from service to a product solution. So Yeah. from service industry to a solution industry, Hmm. the shift when you join. या. तो फिर वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन यूएस. तो यूएस में वी ओपन अ सब्सिडियरी. In Japan also we are trying to get some business. That's a difficult market, but yeah, we are trying to get the business in that. आईटी इंडस्ट्री ये बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक इंडस्ट्री है. हम्म. बहुत ह्यूमन रिसोर्स उसका बहुत एक कोर पार्ट है. So being an entrepreneur, wearing a HR hat every day, how do you manage the talent? How do you manage the mindset behind the talent as an entrepreneur, as an HR of your organization? Yeah, so actually I'm more into sales, but HR part of you I can say that उसका जो मेन मोटिवेशन काइंड ऑफ रहता है, इट्स लाइक एज यू सेड करेक्टली, इट्स अ वेरी ह्यूमन डिपेंडेंट इंडस्ट्री. तो उसमें मेन थिंग इज मनी, बिकॉज यू हैव टू मैच द मार्केट. Second thing is, of course, people should feel there is a growth or they are learning some new things to sustain into the market. Because that's another insecurity people have, in sector like IT. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदलती है. So you have to be there, adopt the new technology. And as a company, if I am supporting my resources or my colleagues
the opportunity to learn new things and to experiment new things. पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ उधर से उनकी Yeah. encourage होती है. Yeah, so I think that is one of the major reason people want to work with you. So we saw the HR side of you. To come to the next hat that generally you as an entrepreneur would be wearing is you would be also acting like a finance person in your organization, in your company. So how do you, so I believe your products would be very high ticket products. आप लोग thousands of dollars का बिलिंग करते हो. So how do you price your product? How do you make sure that your pricing is right? It's contextual, it is competitive. How do you know what's going in the market? आप कैसे कोट करते हो? किस तरीके से अप्रोच करते हो एक सिचुएशन को when it comes to pricing? Yeah, so हमारा जो basically IT इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली इन सर्विस इंडस्ट्री प्राइसिंग जो होता है वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रिसोर्स प्राइस. तो जनरली मार्केट में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वी कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, Okay. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो क्योंकि हम लोग आवर्स पे काम करते हैं तो देन वी सी द व्हाट इज द करंट how much the resource are going to charge for that particular work. Okay. And so what is our cost? So my resource is working on that. If my employee is working on that, or my colleague is working on that. So how much per hour I need to pay for his expertise. Okay. Then there is a buffer we have to Okay. always keep, because there are many requirements which are not there when you Original start the projects, but it comes, it evolves. The requirement evolves once you start doing the business analysis, and then so you have to keep some margin for that also, because once you agree to a certain cost, unless it's a very major change, you cannot go and ask customer back to raise the invoice. So we consider that cost, and then some training cost, because we have to train people. There is some post support you have to give after implementation, so that we have to calculate the whole cost, and then we have to add our profitability based on the duration, like if it is 4 or 6 months. So we add our profitability based on that, and then we quote the price. हमने आपका HR साइड देखा और फाइनेंस साइड. Isn't it very difficult in a high human resource centric organizations where maybe आप रोज तो हायरिंग नहीं करते हो, रोज फायरिंग भी नहीं करते हो, बट आपके पास अच्छा एक टैलेंट पूल है, बट उस टैलेंट पूल को जस्टिस करने वाला समझो आज प्रोजेक्ट नहीं है बाय एनी रीजन. So how do you as a finance, when you wear your finance hat, how do you manage it? How do you sustain this period where you have people cost, high people cost, and high hiring cost in the first case, then this is high people cost, and then you don't have equivalent projects in line or pipelines. How do you tackle these situations? Does it even happen in actual scenarios? Yeah, And because as a service provider, I have to keep a pool of resource available, so to grab the project, to show the strength. So it's always, there are in IT industry it's called bench, the people on bench. So I need to have a certain amount of people on bench, and that's the cost we have to take from the other projects also. okay, Because if there is no project for my people, then maximum we can do is we make them learn new things, use that period as an opportunity to learn something new, to develop themselves, but develop some tools, because we have some products in mind which we otherwise don't get time to work on. So we ask them to start working on those projects, come up with some ideas how you can develop this or how you can enhance these particular things,
and I think that's how we keep them busy. That's why they should not also feel that they don't have work, so they start looking for opportunity outside. So does this struggle happen within your mind between you partners कि जहाँ पे आपको people cost versus project inflow या project incoming पे struggle है where you had to let go few people or maybe you have to stick around with few people because those guys would have been very important for upcoming projects or maybe to showcase your talent pool to people whom you are pitching. So आप लोगों में इंटरनली इसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसे चैलेंजेस आते हैं? Yeah, definitely. क्योंकि end of the day, if anything is costing us money, because business is all about money. तो अगर कोई चीज़ है जहाँ से मुझे कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा है, आफ्टर सर्टेन टाइम्स यू वेट, चलो ठीक है, लेट्स हैव इट, तो बाद में शायद ये कुछ काम का आ जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ये तो काफ़ी देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपन, क्या करना है अभी. तो जो आपका एचआर सेल्फ है आपके फाइनेंस सेल्फ से कैसे हेल्प करता है? क्या हायरिंग डिफिकल्ट है? वापस वैसा टैलेंट ढूंढ पाना आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इज इट which is what is more easier, getting the replacement is more easier or managing finances to somehow sustain that period till the time you can manage the cost is more easier? What's more easier? Actually ये depend case to case. If you find some people are not really good, then you better let them go. और या तो फिर आप उनको बोलते हो जाने के लिए, क्योंकि even the cost of keeping them with you is very high, because they are not learning new things, they are not contributing to anything. So आपका ये बोलना है कि वो कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है Yeah. कि किस टाइप का कैंडिडेट है. अगर कोई कैंडिडेट सच में बहुत अच्छा है, नो he has proven himself, तो definitely we will try to retain him at any cost, because उसकी वापस नर्चर करना, नया टैलेंट ढूंढना, एंड टैलेंट इज वेरी, उसकी जो है वो काफ़ी स्कार्सिटी है पीपल, एंड यू हैव टू हैव गुड पीपल. और बोलते हैं ना हमें एंटरप्रेन्योरशिप में कि एक तो आपका होता है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और दूसरे आपके बाकी के स्किल्स भी मैटर करते हैं कि एंड ऑफ द डे इट्स ह्यूमन. सो आप किस तरीके से कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट करते हो, कंपनी के बारे में सोचते हो, या किस तरह से आपके गोल्स और कंपनी के गोल्स वैल्यू सिस्टम्स अलग होते हैं, ये भी मैटर करता है. नॉट जस्ट योर स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब दैट यू आर हायर्ड फॉर, बट आल्सो योर other factors matter a lot. So it is not like a actual resource or a thing that you use till the time the project is going on, or but it's something that becomes a part of the system. And so as a finance person of your organization, what are the big investments that you have recently made into the organizations that has helped change the game or maybe elevate the game for you or for the company? Are there any recent big investments that you did in the organization which comes from the finance lens? Yeah, actually we hired, because till last year we were working on hiring people on contract and providing them on contract. Okay. So there was not a big in-house team with us. Okay. So last year we decided to hire some freshers and train them and then make them market ready. If we can place them outside on our payroll, or we can get some projects and get delivered by these people. So that was a big investment for us. And when we started, we decided to work in certain technology, but things didn't work the way we planned. And those people, among 15 people, 10 retained with us. तो उनको फिर क्या करना है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के लिए हमने उनको हायर किया था उसमें उतना हमें स्कोप नहीं मिला को पुश करने के लिए आगे. तो हमने उनको
नया चीज़ और सिखाई उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी एंड तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि वी हैव डेवलप्ड आवर ओन प्रोडक्ट्स नाउ first thing. Then we got certain opportunity because of this strength, or because of people were there. We were able to deliver it because जो मतलब मार्केट में जाओ ढूंढ के लेके आओ सब नहीं करना पड़ा. So I think that's one of the investment I said. I would say कि yeah, it gave us good confidence and good leverage. It leveraged us that pool to get some projects. As a finance person in the organization, this investment that you made, how do you see, how do you calculate the ROIs? Do you think from the finance point of view, say operations point of view, say या आपके product development point of view, say of course the operational self in you or the product development self you, and even a sales person within you would be very happy with this decision because now you can develop new products, you can go to the market showing your strength in terms of human resource. But the finance self of you, how do you see this investment and how do you calculate the ROIs? How do you say that हाँ ये डिसीजन मेरा सही है गलत है कैसे पे ऑफ करेगा इस डिसीजन में आप कितने दिनों तक कमिटेड रहते हो आपको डिसीजन कैसे लेते हो कि हाँ मैं इतने दिनों तक वहाँ देखूंगा कि इसका क्या रिटर्न आ रहा है नहीं तो आई वुड फाइंड सम अदर वे टू हैंडल दिस डज दैट स्ट्रगल हैपन विद इन यू Yeah, definitely. क्योंकि see project मिलना is very intangible thing. Because आप sure नहीं हो कि next project कब मिलेगा. तो एज अ फाइनेंस ऑफ द कंपनी इट्स डेफिनेटली बट यहाँ पे तो आपको पैसा देना ही नहीं एंड वी आर वेरी न्यू कंपनी वी आर जस्ट 4 year old कंपनी तो ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छा पुल है एंड देन वी कैन जस्ट स्पेंडिंग मनी सो स्मॉल कंपनीज लाइक अस रियली स्ट्रगल इन दैट सेंस टू व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो अबाउट इट तो यस डेफिनेटली वो ROI जो है वो पर कभी कभी एज एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक सर्टेन रिस्क that's what make you entrepreneur because it may pay off, it may not, but you have to take some risk. You cannot always see from everything from ROI point of view और ये ठीक है मतलब पेन एंड पेपर पे ऐसे होना चाहिए so that things really you cannot go then you won't grow because to grow you have to take certain decisions. It may fail, it may succeed, but at least you will learn or you will learn. So that's all. So you said that maybe the ROIs or calculating everything and seeing what kind of results we will be getting after every decision may not be possible every time. You have to take some kind of risk. But even for say how much risk is enough or how much to leverage your conditions or your opportunities that you have around. So as the finance person of your organization, where sometimes you have to take tough financial decisions, what are the matrices or what are the numbers or KPIs that you see or measure or keep a track of to understand कि ओके ये मेरा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल चल रहा है या ये मेरा डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है या कॉस्ट सेंटर है कुछ आर देयर एनी मेट्रिसेस और KPIs that you measure? Yeah, तो जैसे एक सर्टन रिस्क लेने का भी एक एपेटाइट होता है मतलब कि आई कैन टेक 10% ऑफ माई आई कैन स्पेंड 10% मनी ऑन न्यू थिंग्स और आई कॉल इट एज अ टेकिंग रिस्क तो वी इवेल्युएट आफ्टर सर्टन टाइम कि ये चीज़ें हमने चालू की थी 3 महीने बाद उसका क्या हो रहा है एटलीस्ट इज इट शोइंग सम प्रोग्रेस कुछ उसके अंदर से कुछ वैल्यूबल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है तो इट्स नॉट गिविंग मी द एंड रिजल्ट्स बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम प्रोग्रेस तो फिर वो कैसा कितना उसमें व्हाट एफर्ट्स वी हैव पुट व्हाट आउटपुट इट हैज गिवन वेदर दैट आउटपुट इज रियली वर्थ द एफर्ट वी पुट तो वो सब कैलकुलेट करके यू हैव टेक कॉस्ट डिसीजन कि ठीक है चलो ये वी डोंट थिंक सो दिस थिंग इज गोइंग द वे इट शुड कैन वी से कि आप लोग
आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल या आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल खासकर आपका इज मोर ऑफ अ ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ थिंग कि आप लोग ट्राई करते हो एंड इफ यू सी गुड रिजल्ट्स और इफ दैट गोइंग पेइंग ऑफ then you go along with it, and if you are not seeing any results coming out of it, after a certain time you rather stop it so and try something else. Is this kind of Yeah, we don't stop the. So I want to reach to some point. We don't stop our journey. We just revisit our approach. So if I want to achieve a certain customers, so we try one thing. So we say, okay, we are not reaching by this method, so let's try something else. okay. Yeah. So that's how we. Now that you have talked about methods and processes and approach, I want to take this discussion where we discuss about your you as a chief operational officer, where you wear the hat of operational officers many of times in as an entrepreneur. What are the in an IT company like yours? What are the systems or SOPs that you feel that are very critical to deliver consistent results in tech field that you are into? Are you guys follow some kind of approaches or methods in terms of operations? Yeah. So IT company is very, I would say, a very systematic. It's a very organized, It's very organized, thing. systematic, process-oriented organization. So we generally what so there are two things. One is running the organization and one is the running the actual project. तो actual project में जब काम चलता है तो we have to have there is a very set defined rules already. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स वहाँ पे एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिस्टम यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तरीके जैसे एजाइल एज अ मेथड, और तो आप लोग काफी उस चीज को फॉलो करते हो. तो जनरली नाउ वी आर इनटू ओरेकल. तो ओरेकल जो का एक चीज क्या है कि ओरेकल इज लाइक अ वेरी मोनोलिथिक एंड तो उसमें मोस्टली जो होता है वो एसडीएलसी अभी भी फॉलो बहुत किया जाता है क्योंकि द क्लाइंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट प्रोसेस कि हाँ पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर उसको एक्चुअल लाइफ करना. तो ओरेकल वर्ल्ड में अभी भी ये बहुत कॉमन है टू फॉलो दिस एसडीएलसी प्रोसेस. अभी जो हम लोग ओपन सोर्स वाले जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं जो पाइथन में या जावा या फुल स्टैक में, वहाँ पे वी फॉलो द अजाइल मेथड. स्पेशली हमारे जो खुद के प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इन दैट वी फॉलो द अजाइल मेथड. वी रिलीज एंड वी चेक. पर जो बहुत टाइम कस्टमर्स जो रहते हैं उनका एक बहुत दे विल इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेसेस because we are just doing customer solutions for them. So they are the owner of the project. They have their own project managers. तो बहुत बार वो लोग they are very firm कि नहीं है, we have to follow the SDLC method. तो हम बहुत बार वही follow करते हैं. So it's all customer dependent. उनको क्या exactly चाहिए. You spoke about the 7 pillars for you viewers. Or what we can say that I always teach in my coaching and even in my consulting that an entrepreneur should be a master of these 7 pillars. Entrepreneur should understand marketing, sales, accounts, finance, operations, HR, and research and development. And these 7 skills are something that an entrepreneur should harness and be master of, because इसके बगैर आप एक business में run नहीं कर सकते. And that's what an entrepreneur does, right? कि वही उसके business का सेल हेड है, मार्केटिंग हेड है, फाइनेंस हेड है, ऑपरेशन हेड है, और यही अपने पॉडकास्ट का भी थीम है. हम एज ए सीईओ आपके साथ बात कर रहे हैं कि एज एन ऑपरेशनल हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, what are some operational insights or practices that you think that an entrepreneur should know, learn, understand
टू स्केल फास्टर, सो फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट स्केलेबिलिटी के लिए ऐसे कौन से ऑपरेशनल इंसाइट्स है जो एक एंटरप्रेन्योर ने रखने चाहिए? या तो जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है ना, इनिशियली जब हम छोटे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर पीपल ओरिएंटेड। क्योंकि हम कब छोटे होते हैं, वी डोंट नीड वेरी प्रोसेसेस, और तो पर जैसे हम लोग थोड़ा ग्रो होने लगते हैं, आई थिंक प्रोसेसेस इज व्हाट हेल्प यू टू ग्रो फास्टर। क्योंकि एक तो वो डिसिप्लिन लाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सो नो मैटर हु यू आर, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। दूसरा एक होता है कि हमको क्या नहीं करना है, ये भी हमारी प्रोसेस की वजह से समझ में आता है। So you're not repeating your mistakes again. Yes. आपका प्रोसेस सेट है, आपको पता है कि ये मिस्टेक्स हम पहले कर चुके हैं, नहीं करना है, तो दैट्स व्हाई यू ब्रिंग द प्रोसेस। सो इवन एनी न्यू पर्सन कम्स इन, तो वो पुरानी गलतियां नहीं करता, इट गिव्स हिम फ्री हैंड टू मेक न्यू मिस्टेक्स रादर देन रिपीटिंग द ओल्ड मिस्टेक्स। और आपको पर्सनली ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता हर चीज़ में, जो आप एज अ सोलोप्रेन्योर, एज अ छोटे एंटरप्रेन्योर करने जाते हो। आपका तो मोस्टली टाइम जो होता है ना, फिर वो सब डेली इसमें चला जाता फायर है, फाइटिंग में चला जाए। फायर फाइटिंग में चला जाता है, रादर देन थिंकिंग हाउ टू ग्रो बिजनेस। तो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल इस बारे में, कि सिस्टम शुड बी इन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ट्राई टू ऑटोमेट दैट सिस्टम ओके, maximum. It's not necessary you have to enter some softwares or anything, but you have to mold your people or train your people in such a way that it should become part of their daily working culture. करेक्ट। और दूसरा होता है जो नेटवर्किंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेटवर्क्स, ये मैंने बहुत अच्छा सुना कहीं से, तो कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू नो, इट्स इम्पोर्टेंट हु यू नो। तो ये दैट्स व्हाई कीप ऑन नेटवर्किंग। एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, दिस मच टाइम आई एम गोइंग टू स्पेंड टू मीट न्यू पीपल। तो ऐसा नहीं कि हर बंदा से मिलेगा वो आपको बिजनेस देगा, डोंट ट्राई टू गो विद दैट मेंटालिटी, जस्ट ट्राई टू मेक सम गुड रिलेशंस। वो आपको भले बिजनेस लाने में नहीं मदद करेगा, वो आपको किसी एग्जीबिशन में हेल्प कर सकता है, ही कैन कनेक्ट टू सम पर्सन। तो इट्स ऑल नेटवर्किंग। So, Rujit, every role that you are playing as an entrepreneur, I'm sure that you are very much playing the role of a HR head and a finance head and operation head, but it keeps diverting and keep hinting to your sales and marketing hat that you wear, because I believe that's the role that you enjoy and that's the role in your partnership also. पार्टनरशिप में आपका पार्टनरशिप स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? आप लेट एंटर हुए ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कहा कि ऑलरेडी 3 पार्टनर्स चला रहे थे, आप बाद में ज्वाइन किए। कितना डिफिकल्ट था आपको उनके साथ अडैप्ट करना या वो एक पार्टनरशिप में आना? आप लोगों का भी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर क्या है? और तो मुझे एक्चुअली क्योंकि मैं 6 से 7 साल आई वॉज नॉट इन टच विद IT, तो मेरे लिए थोड़ा शुरू में ये मुझे वापस वो IT माइंडसेट में आने के लिए थोड़ा टाइम गया। एंड स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, वी आर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे एज सच तो वी आर, तो हमारा जो पार्टनरशिप है कि राम एंड आई लुक आफ्टर सेल्स। Ram kind of he is looking to multiple verticals, फाइनेंस, HR वो ज़्यादा मोस्टली देखते हैं। देन रोहन एंड वीरेंद्र, दे आर वेरी टेक्निकल पीपल, टेकी गाइस। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, तो ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, सो दे गाइस डिसाइड बेस्ड ऑन देयर ये। और एक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। सो इफ समवन सेज नो, then the rest of 3 understands that there must be some reason he is saying no. तो हम लोग फिर ज़्यादा उसके ऊपर ये नहीं करते, यू नो अननेसेसरी कन्विंस हिम और ट्राई टू यू नो क्रॉस हिम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको एज बिजनेस की, यू हैव टू लीव इट बिकॉज अगेन वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन्स, तो there should not be ego anywhere. It's like you are discussing to take this organization ahead.
और बहुत बार मुझसे गलत डिसीजंस होते हैं या किसी और से होते हैं, सो वी डोंट ब्लेम ईच अदर फॉर दैट, बिकॉज यू नो दैट द इंटेंशन बिहाइंड दैट डिसीजन वाज टू मेक दिस कंपनी अ बेटर कंपनी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो अजम्पशंस होते हैं वो वैसा होता नहीं चीज़ है, Right. so that it becomes a wrong decision. So we don't blame, nobody blames each other for that thing. So I think that's very good structure that we have, and that the same culture we try to penetrate in our subordinates, or okay, don't try to blame each other, but we rather than come together and solve the problem. कितना डिफिकल्ट होता है पार्टनरशिप में बिजनेस करना जब आप एक इंडिविजुअल सोलो प्रोप्राइटरी एंटरप्रेन्योर होते हो या सोलोप्रेन्योर होते हो, तो आपके डिसीजंस होते हैं, आपके मिस्टेक्स होते हैं, आपकी ओनरशिप होती है। पार्टनरशिप में आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो आपको डर रहता है कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर पीपल ऑल्सो। इतना डिसीजन मेकिंग का वहाँ पे कितना डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे डिसीजंस लेना, या एक पार्टनरशिप में एक्सप्लोर करना, ग्रो करना, या अपने बिजनेस के लिए जो ट्रायल एरर्स आपको करने हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन आपको करना है उसका एनवायरनमेंट के लिए, तो इज पार्टनरशिप रियली डिफिकल्ट और इट इज मैनेजेबल? Yeah, see, partnership is end of the day, it's all about trust. क्योंकि वो ट्रस्ट की वजह से लोग एक साथ होते हैं। तो पार्टनरशिप के प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली कैसे आते हैं, एज अ सोलोप्रेन्योर इट गिव्स मी अ फ्री हैंड टू टेक माय ओन डिसीजंस, टू एग्जीक्यूट देम ऑन माय ओन, बट उसके साथ बहुत लिमिटेशंस भी आते हैं क्योंकि यू हैव एक ही डायरेक्शन में आप सोचते हो। पर व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, तो जब आप कोई प्रपोजल रखते हो या कुछ आइडिया रखते हो, तो उसको सामने वाले से काउंटर क्वेश्चंस आते हैं, दैट मेक्स यू रीथिंक योर आइडियाज और ट्राई टू डू मोर स्टडी ऑन योर आइडिया। तो उसको आप अगर पॉजिटिवली लेते हो क्रिटिज्म को या उसके क्वेश्चंस को, तो आई थिंक देन योर पार्टनरशिप विल डेफिनेटली फ्लरिश। क्योंकि ऐसा बहुत बार फिर होता है कि अरे तू मेरे इस पे हमेशा क्यों सवाल उठाता है, जब पे मैं कुछ लेके आता हूँ देन यू ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू सम नेगेटिव, ये तो हमेशा ये करता है। तो काइंड ऑफ ये बहुत बार होता है पार्टनर्स के अंदर, यू थिंक ही इज ट्राइंग टू पुल मी बैक, और तो इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी कि इट्स अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, क्योंकि जैसे आपका कुछ स्टेक पे वैसा उसका भी स्टेक पे, he also has put an effort and everybody has put an effort। तो उल्टा आपको एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू टेक वेरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, क्योंकि आपको इसके बारे में भी सोचना है, उसके बारे में सोचना है, और उसको कभी बार होता है कि आपका एक डिसीजन पूरी कंपनी को भी ये कर सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट, एंड इट्स लाइक रनिंग अ फैमिली। सो यू हैव टू टेक, इफ यू थिंक पार्टनरशिप एज अ फैमिली, अभी घर में भी झगड़े होते हैं, बेटे और बाप के झगड़े होते हैं या भाई भाई के झगड़े होते हैं, तो क्या एक्सटेंट पे उसको लेके जाना है और कहाँ उसको स्टॉप करके यू हैव टू कम टू सम अंडरस्टैंडिंग। इफ यू फॉलो द सेम रूल इन पार्टनरशिप, तो आई डोंट थिंक सो पार्टनरशिप इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो अकेले बिजनेस कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर मेरे पास एक पार्टनर होता तो मे बी मैं लेवरेज कर पाता, या मैं कुछ मेरे रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर लेता, तो मे बी जो आज मेरा मे बी सातों फंक्शंस में या मे बी बियॉन्ड दैट मेरा जो एनर्जीज जा रहे वो नहीं जाते, मे बी कोई सेल्स देख लेता मेरा पार्टनर, या कोई मेरा ऑपरेशन देख लेता और मैं सेल्स में अच्छा हूँ, ये थॉट बहुत बार एक सोलोप्रेन्योर को आता है। तो आपने इतने सारे बिजनेसेस किए, यू हैव बीन इन सोलोप्रेन्योरशिप आल्सो इन योर अर्ली entrepreneurship journey, you tried multiple partnerships which may have worked or may not have worked, now you are in a partnership IT firm, इन entrepreneurs, इन solopreneurs को आप क्या बोलोगे कि is finding the right partner the thing, or maybe आज solopreneurship में भी किया जा सकता है, या उनके जो challenges है उनको आप किस तरीके से देखते हो? Soloprenneurship, I think it's very difficult. Okay. Yeah, with my own experience I will tell. Here, you know, you are, तो आपको जैसे मैंने बोला कि you are freedom to take your own decisions, but
बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते Okay. जो या एक टाइम पे आप दो जगह नहीं हो सकते। Okay. तो अगर आपके पास पार्टनर है उस टाइम पे लगता है ऐसा कि पार्टनर होगा तो एंड डेफिनेटली इफ यू सी ऑल द बिजनेसेस Okay. ऑल बिग कंपनीज ऑल आर पार्टनरशिप कंपनीज दे हैव टीम। सो कोई भी कंपनी ले लो भले उसका ऐसे फ्रंट फेस आज मीडिया में दिखता है दैट गाय इज लाइक बिकम द फेस ऑफ द कंपनी। बट वो पार्टनर्स नहीं होते ना, बहुत बार तो आपकी टीम होती है, मे बी आपके नहीं पार्टनर्स ही होते हो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लो एप्पल लो माइक्रोसॉफ्ट लो एनीथिंग बिल गेट्स इज अ फेस ऑफ वाज फेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बट उसके जो पार्टनर्स थे जो टेक्निकली पीछे काम कर रहे थे कोई एचआर कर रहा था कोई ये कर रहा था तो दे वर पार्टनर्स। ओके। भले बिल गेट्स वाज अ 51% स्टेक होल्डर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन बट रिमेनिंग 49 वाज अमंग द पार्टनर्स। इंफोसिस का आप एग्जांपल ले लीजिए तो ये अभी विप्रो और सब कंपनीज वो आई डोंट वांट टू बट कोई नया कंपनी जब स्टार्ट होता है स्पेशली आज today's if you see the today's dynamics it's better always better to have a partner or person with you to take quick decisions to move fast तो वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा पैसे की कमी है तो वो आप पैसे डाल सकते हो so there are a lot of things and I think partnership really works better than solo partnership that's my experience. Rujit, let's lighten up the mood a little bit and let's play a game. I'll ask you some rapid fire questions and you have to choose between one. First thing that comes into your mind, ChatGPT or DeepSeek? ChatGPT. In a hiring environment, millennials or Gen Zs? Millennials. Work from office or work from home? Work from office. Work from office. WhatsApp or email? Email. Email. Product first approach or client first approach? Client first. Client first approach. Shortcut or a structured way? Structure. Okay. Profit or growth? Both. Okay. Paid marketing or organic marketing? First choice, organic marketing. Okay. Okay. One thing that you are terrible at as a founder or as an entrepreneur? Not terrible, but priority is I'm not too technical to be in tech company. Okay, so maybe technical knowledge आपका कहीं short पड़ेगा. Okay, and one thing that you think is your strength as an entrepreneur? Understanding of people Okay. and networking up to some limit. Yeah. Nice. Good. You played the rapid fire well. Now we come to the most important as per me because I am more of a marketing guy, a sales guy. So the marketing hat or the sales hat that you wear, and knowing you, I have understood that you are more of a in your roles and responsibilities within ethics also. You are more into marketing and sales. So. In your service portfolio, there is a huge portion of consulting, right? And consulting isn't always marketed. कि consulting करना को marketing नहीं कर पाते हैं कि हम consultant हैं या हम कहते हैं. So how do you get these early clients or early customers in this scope of business? आप कंसल्टिंग क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर करते हो, किस तरीके से अप्रोच करते हो, कैसे स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी विथ योर बिजनेस? या सो हमारे लिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऑलरेडी हमारे जो पार्टनर्स थे वो उस कंपनी में काम कर रहे थे सो दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम
Okay. but that's not always the case with everyone, Okay. because that is the biggest challenge, is to make yourself relatable or relevant to someone as a consultant, Right. because you I would say consultant को कैसे देखा जाता है, to be frankly, because I've been into the market कि एक एज अ थर्ड पर्सन का ही उसको एक हमेशा से एक लुक, मतलब एक काइंड ऑफ परसेप्शन है उसके बारे में, यू नो, व्हेन यू से आई एम हायरिंग कंसल्टेंट, तो उसको एक थोड़ा सा ऐसे कोनोटेशन आता है, नहीं ये बाहर का बंदा है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। एंड तो काफी उसके लिए एक आई वुड से नेगेटिव, बट थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है, करेक्ट। अरे यार कंसल्टेंट लेके क्या करेंगे, उसको हमारे बिजनेस के बारे में क्या पता है, या व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू ऐड, Correct. और Maybe certain things we will learn through our mistakes. Why we want to do this mistake? By किसी और के बोलने पे वो मिस्टेक्स करने से अच्छा खुद ही कर लो। हाँ, खुद ही कर लो। और कंसल्टेंट आएगा, वो बोलेगा बे ट्राई करो, और फिर हम गलतियां करेंगे, हाँ। वो भी सीखेगा, हम भी सीखेंगे, तो गलती से सीखना है तो खुद से ही सीखो। या तो फिर कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर हाँ। कल चीज नहीं वर्क हुई, करेक्ट। तो एंड ऑफ द डे कंसल्टेंट तो बोल देगा, अरे मैंने तो बोला था तुमको, Correct. There are a lot of there may be other contextual factors, factors, yeah. yes. तो डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इंडियन मार्केट में तो इतना अभी, जैसे बाहर देखा जाए तो कंसल्टेंट्स मेनली ड्राइव द बिजनेस, पीपल हायर कंसल्टेंट फॉर मेनी थिंग्स, because they know if I don't have knowledge, then I need someone with that knowledge to help me to understand, to build. पर इंडिया में थोड़ा सा एक मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल काइंड ऑफ ये रहता है कि अरे उसको क्यों पैसे उसको ये देना नहीं है, आता है या उसको वो नहीं आता है, कंसल्टेंट को सब कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, वो कैसे समझेगा? हाँ उसको क्या पता अभी हाँ। मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए और उसने क्या मार्केट किया है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत होती है, बट डेफिनेटली हमारा जो कंपनी है वो इट्स काइंड ऑफ ऑपरेशनल। ओके। तो अगर हम बोलते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये चीज़ें होती है, Okay. ऐसा होना चाहिए, वो वी कैन प्रूव इट थ्रू बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप और गिविंग द प्रीवियस एग्जांपल। So you have a very good operational support or backend to your consultancy wing, so that whenever you are approaching or you are delivering any kind of consultancy, then you can prove it by also supporting into implementation. Yeah. But उसको बेचना कितना मुश्किल है या आसान है? आप जब आपकी फंक्शनल कंसल्टेंसी बेचते हो, आपको कोई भी प्रोजेक्ट विन करना है, तो आपको आपकी एक्सपर्टीज उसमें प्रूव करने हैं, उसको विन करते वक्त उसको आपका क्या, जैसे हमने अभी पहला प्रोजेक्ट जब हमारा विन किया था, तो उसके लिए एक्चुअली हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था उस प्रोडक्ट का, और वो प्रोटोटाइप हमने जब हमारे रेफरेंस से क्लाइंट आया था उसको दिखाया, और उसको फिर जो प्रोटोटाइप देख के ही कुड विजुअलाइज कि हाँ ये सब चीज़ें ये प्रोडक्ट कर सकता है, उसको हमने एक बेसिक फ्लो दिखाया था, और फिर उसको समझ में आया कि हाँ, तो एक चीज़ आई कैन सी इन योर कंसल्टेंसी सम काइंड ऑफ प्रोटोटाइप इफ यू एबल टू शो योर क्लाइंट this is the way I'm going to improve your business. This is how it works. This is the expected results of this particular process or product. तो client convince जल्दी होता है क्योंकि at least he can see something there and he can at least start thinking कि हाँ चलिए ऐसा ऐसा किया तो ये हो सकता है, ऐसा ऐसा किया तो ये हो सकता है। So what is the associations that we say कि ethics is known in the market for these certain things or these values or these so what are the associations that people or the clients have with ethics? Why do they refer you? तो जो एसोसिएशन हमने फर्स्ट किया है, ऑलवेज वी ट्राई टू प्ले विथ क्वालिटी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप प्राइस के ऊपर जाओगे देन यू विल ऑलवेज बिकम अ प्राइस, यू ऑलवेज प्ले इन द प्राइस सेंसिटिव मार्केट। पर आप क्वालिटी पे जाते हो तो जैसे क्वालिटी कैसे प्रूव करना है कि
जैसे हमारा इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद लॉट ऑफ जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद भी बहुत इश्यूज आते हैं उसको स्टेबल होने के लिए, और जितना पैसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए खर्च नहीं किया उससे ज़्यादा पैसा लोगों को उसको मेंटेन करने में खर्च करना पड़ता है। करेक्ट। तो वी हैव टू मेक श्योर, तो हम पहले वो करते कि पहले हम लोग तुमसे 2 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं मार्केट से, बट एक बार हमसे इम्प्लीमेंट हो गया है तो उसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं है उसकी तरफ। ओके That's what we learned from our Japanese counterpart. तो हमने बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट छोड़ दिए जो हमारे प्राइस पॉइंट पे नहीं थे। ओके, बिकॉज यू डिडंट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी, हाँ, क्योंकि एक बार क्वालिटी प्राइस की आदत लग गई। दैट्स व्हाट माय पास्ट एक्सपीरियंस आल्सो। करेक्ट। एक बार लोगों को, कल आपने उसको प्लेटफॉर्म फी भी लगा दी, जैसे बहुत जगह तो लोग तुरंत छोड़ देते हैं उसको यूज करना। तो Yes. इसलिए डे वन से, और हम कस्टमर भी उसी तरह के थे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। तो आपको कौन से टाइप के कस्टमर्स चाहिए? आपको पे मास्टर्स चाहिए, आपको प्राइस सेंसिटिव कस्टमर चाहिए, किस टाइप का कस्टमर चाहिए, उस हिसाब से आपको आपका पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए फिर आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। अगर पे मास्टर चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो पे मास्टर को कन्विंस करने के लिए क्या क्या थिंग्स, क्या पॉइंट्स आपको फोर देखना है, उसको दिखाना है, जाके वो कन्विंस हो जाके ठीक है मेरे 2 रुपए जा रहे हैं पर मुझे उसका इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आपको प्राइस सेंसिटिव इसमें जाना है फास्ट की, नहीं चलो ठीक है इसको हम उसको बोलते हैं ना एकदम तोड़ के देते हैं, तो सामने वाला कितने में दे रहा है, अच्छा 100 वो 100K में दे रहा है क्या, मैं तुमको 70K में देता हूँ। तो फिर वो मार्केट भी अलग होता है। जैसे मिडिल ईस्ट में आप जाओगे तो मिडिल ईस्ट में ये मार्केट बहुत है। वहाँ पे इतना ये हो गया कि वो सामने वाला 100K दे रहा है तो इधर बंदा 50K में भी उसको करने को तैयार है। इतना वेरिएशन है वहाँ पे। Maybe isn't that is there way to acquire market? Yeah, definitely. So that's what you have to play on your strength. कि how long you can sustain Okay. with this price point. If you really have some process in place or some very authentic formula. So you're saying कि आपको हर कस्टमर हर टाइप का मिलेगा, आपको ढूंढना है वो राइट कस्टमर जो आपके एथिक्स, आपके वैल्यू सिस्टम ये होता है क्या, ये आपको आपके टाइप का है बेसिकली। आप गाड़ी वही खरीदते हो जो आपके टाइप की हो। करेक्ट। तो सेम कस्टमर जैसा ही है। तो कस्टमर इज अ टू वे स्ट्रीट। तो कस्टमर अगर आपको कभी बहुत बार एटीट्यूड भी उसका आपको जज करना पड़ता है। अरे इनिशियली इसमें इतना ये तकलीफ दे रहा है तो आगे कितना तकलीफ देगा। तो कई बार हमने उसकी वजह से प्रोजेक्ट छोड़ दिए कि वी डिडंट फाइंड दैट कस्टमर बिट क्रैक कि अरे काम करने से कोई मतलब नहीं इसके साथ। तो ये सब चीजें भी आपको ये वो डिसीजन किसका होता है? वो जब आप इंटरनली वो डिसाइड कर रहे हो तो कि आपको कौन से कस्टमर के साथ काम करना है, कौन से कस्टमर के साथ नहीं काम करना है, आप ऑपरेशंस को आगे के ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, अभी फिलहाल आप सेल्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आपका ये जो दिमाग के अंदर ये जो बोर्ड रूम होती है आपकी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपका सेल वाला बोल रहा है बिजनेस आ रहा है उसको देखो, ऑपरेशन हो रहा है ये बिजनेस लेके करूँगा क्या, मैं अटक जाऊँगा इसमें। तो ये जो आपकी स्ट्रगल्स हो रहे हैं आपके माइंड में, तो जनरली इसमें आप किसको प्रायोरिटी देने का डिसाइड करते हो? सो हाउ डू यू प्रायोरिटाइज whom to give priorities to? तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी जो हमारे दिमाग में चलता है, सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना तो चाहिए, बट सेल्स लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हम कुछ कमिट कर दे जिससे हमारा खुद का नाम खराब हो जाए। तो बहुत बार क्लाइंट हमको ये गाजर देता है कि यार तुम ये कर दो, फिर मेरे पास बहुत काम है यार, देयर आर लॉट ऑफ वर्क लाइक दिस इन पाइपलाइन, तो तुम मुझे ये कर दो, या आई वुड कनेक्ट सो आई विल कनेक्ट टू सम अदर पीपल, पर तुम ये काम मेरा सस्ते में कर दो। तो ये से बहुत गाजर दिखाने की भी कोशिश होता है। तो दैट टाइम यू हैव टू टेक वेरी कॉशियस कॉल। ऑफ कोर्स ये देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दैट, इट्स जस्ट योर गट टेल्स यू समटाइम्स, या जस्ट लीव इट। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बहुत से टाइम पे क्या होता है कि क्लाइंट्स आपको फ्यूचर एस्पिरेशंस दिखा के करंट डील में बार्गेन करता है, या वो बोलते हैं कि
छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ तो एक भूल होता होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में उनको कोई क्लाइंट आके बोलेगा कि अभी आप हमारा काम कर दो, हम आपको रेफरेंस देंगे या हम आपको आगे एक बड़ा काम का स्कोप देंगे और हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए मे बी इनिशियली हमारे वैल्यू सिस्टम्स को छोड़कर हम हाँ भी बोल देते हैं. तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? शुड वी एज अ सेल्स पर्सन should we go and win this kind of opportunities? नहीं, यहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन सी क्लाइंट तो आपको चाहिए, पर वो जो आपको फ्यूचर के बारे में बोल रहा है वो आपको श्योर नहीं है, पर इसको भी छोड़ना नहीं है. तो थोड़ा सा इस टाइम में यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, एटलीस्ट कुछ करके जानने की कोशिश करो कि नेक्स्ट रेफरेंस कौन है उसका, वेदर वो है कि नहीं है. ये तो है तो फिर किस टाइप का है कि वो भी ऐसे ही है, तो वहाँ पे भी मुझे वापस मार्जिन गिरा के काम करना है. तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, ये थोड़ा जजमेंटल है, तो इंस्टिंक्टिव है. तो उस टाइम के आपकी ज़रूरत क्या है ये भी आपको देखना चाहिए. कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप ज़्यादा नखरे भी नहीं दिखा सकते. तो आपको जो मिल रहा है वो करना पड़ेगा. एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक नाम लग जाएगा, भले वो कुछ काम दे ना दे, पर एटलीस्ट आई कैन शो टू सम अदर कस्टमर कि मैंने इसके लिए काम किया है. तो बट एटलीस्ट एक चीज़ जो हम पहले ये करते हैं ना कि भले प्रॉफिट ना मिले और लॉस नहीं होना चाहिए, तो अपनी जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए. तो एटलीस्ट उतना तो टेक केयर करना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर ने. एक बार अपनी जेब से पैसे देने लगे तो फिर आपको बिजनेस बंद करना है. आई थिंक दैट्स पहले. आपका बहुत हाई टिकट बिजनेस है, आपका जो टिकट साइज है वो ह्यूज है. टू विन सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स, टू गेट सच काइंड ऑफ लीड्स, what are the sales and marketing channels that you use? How do you approach your clients? What are the channels that you use to approach these clients? आपने कहा कि आप लोग रेफरल्स पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो, बट aren't referrals make you feel insecured because आपको मालूम नहीं है नेक्स्ट रेफरल कहाँ से आएगा. तो अगर आपको अभी बिजनेस ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अगर रिसोर्सेज है, बट आपके पास सामने उतनी अपॉर्चुनिटीज, सेल्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो एथिक्स में आप लोग इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हो? आपके पास कोई लीड चैनल है क्या, कोई सेल्स में प्रोसेस है क्या, यहाँ से आपको लीड्स आती रहती है? तो अभी जैसे हमने एक्सप्लोर करना चालू किया है, तो वी आर इन दैट फेज के वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी प्रूवन channel or proven methodology. You guys evolved we are more as a evolving now. referral organization where you started getting references from your partners, initial connection, initial. तो अभी जो हम स्टेज पे कि अभी हम हमारे जो नेक्स्ट इन प्रोजेक्ट्स आए थे वो सेम क्लाइंट ने बताया कि यार इनसे काम करवा लो, ये देयर वेरी गुड रेफरेंसेस. वो एक है. दूसरा वी आर एक्सप्लोरिंग द चैनल पार्टनर्स. ओके. तो हम किसी ऐसी कंपनीज के पार्टनर्स बन गए हैं कि जो एक काम उठाते हैं, उनके पास एपिटाइट है, पर उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है. B2B sales where you are associating yourself with businesses who might give you contracts or who might. हाँ, तो जैसे कोई कंपनीज है जो ओरेकल में नहीं है, बट दे आर इन द मार्केट विद द गुड स्कोप ऑफ ओरेकल, तो हमने उनके साथ चैनल पार्टनर बनाया है. तो आप हमारे सो वी विल बी देयर, तो आप ओरेकल का प्रोजेक्ट उठाओ, उसको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लेंगे, जो भी मार्केटिंग मटेरियल चाहिए, जो भी आपको केस स्टडीज, यू गो इन द मार्केट. तो उसका भी एक दो प्रोजेक्ट आया हमारे पास, पर वो कॉस्टिंग की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया. बट दैट इज वन ऑफ द चैनल वी सॉ इज गिविंग अस बिजनेस टू मेक चैनल पार्टनर्स. तो वो एक है, क्योंकि बिग साइज टिकट में मैंने देखा है ना क्या होता है कि सामने वाले को बहुत अश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेंडर चाहिए होता है कि उसको क्योंकि पता है उसका पैसा खर्च होने वाला है, और कल वो अगर चीज नहीं हुई तो उसका जॉब स्टेक पे है. तो वो बंदा हमेशा ये सोचेगा कि यार मैं किसी अननोन कंपनी को देने से अच्छा मैं किसी नोन कंपनी को दूंगा. वो फंस गए, एटलीस्ट आया कि मैंने एक बहुत नोन कंपनी को दिया है, करेक्ट. पर इनको देखे अगर काम फंस गया कल
करेक्ट तो फिर ये मेरे इस पे आएगा कि तूने इसको क्यों काम दिया। करेक्ट तो उस माइंडसेट से अगर हम सोचे, यू नो, वी पुट आवर फुट इन द हिज शूज, और हम जब देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि यार ये चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, उसको टेक डिसीजन मेकर के हाँ बट सेम उसका एक अपोजिट साइड भी होगा ना, वो डिसीजन मेकर ये भी सोच रहा होगा कि एक बड़ी कंपनी का जाऊंगा, रेप्यूटेड कंपनी के पास जाऊंगा, तो मे बी आई हैव टू पे अ लिटिल हायर प्राइस फॉर द रेपुटेशन दैट दे ब्रिंग टू द टेबल। मे बी इफ आई गो विद अ न्यू कंपनी आई गेट इट एट अ चीपर प्राइस, रिस्क थोड़ी ज्यादा है बट मे बी प्राइस कंपोनेंट या Yeah. कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ ए बहुत फिजिबल है। यस, नहीं वैसा भी होता है, पर क्या होता है ना कि जो जिस सेगमेंट में हम लोग खेल रहे हैं, मतलब जो ओरेकल की है, कि वो इतना ये होता है ना कि छोटी सी गलती एक बड़े कुछ प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, राइट एंड दैट कॉस्ट विल बी वेरी ह्यूज। करेक्ट करेक्ट तो उस चक्कर में वो लोग फिर ये कॉस्ट पे ज़्यादा नहीं सोचते करेक्ट कि दे वांट दे आर टारगेटिंग टू सेव दैट कॉस्ट। करेक्ट अभी उस चेक सेम थिंग, तो दैट्स व्हाई रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो फिर किसी और से पूछेगा अरे तुमने इनके साथ काम किया है क्या। So, what I see as a go-to channel or a main channel for ethics is network. नेटवर्क ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तक तो हमको ये समझ में आया कि नेटवर्किंग होना और उसको नर्चर करना और उसको उसी को यूटिलाइज करके आगे बढ़ना इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। So what are your as marketing head of an organization, sales head of an organization, what are your steps in scaling up your network, in expanding your network? तो जैसे कि नाउ इफ दिस इज पर्टिकुलर फॉर आईटी कंपनीज, कि आईटी कंपनीज में नेटवर्क के लिए बहुत अच्छे चांस क्या होता है ना कि जैसे आप किसी कंपनी का टेक्नोलॉजी यूज करें, जैसे ओरेकल है या माइक्रोसॉफ्ट है, तो उनका क्या होता है ना, उनका एक पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें आपको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं उनको और कुछ सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं, बट वो पार्टनरशिप का एक टाइम होना बहुत जरूरी होता है। तो उससे सामने वाले को मार्केट में आपके बारे में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ही इज अ पार्टनर विद दिस कंपनी। Okay. तो ये आईटी कंपनी में एटलीस्ट दैट इज अ गुड थिंग कि ये पार्टनरशिप प्रोग्राम चलते हैं। Okay. तो जैसे अभी हम ओरेकल की पार्टनरशिप को मतलब वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्टनरशिप Next year. नेक्स्ट ईयर, Okay. तो वहाँ पे फिर जैसे ओरेकल है तो ओरेकल आल्सो हेल्प्स यू टू Win clients. विन क्लाइंट्स। Okay. जैसे सेम थिंग विद माइक्रोसॉफ्ट नॉट मच बट गूगल आपको वो हेल्प करता है, Okay. AWS हेल्प करता है Okay. बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर कस्टमर Right. इन दैट वे। दूसरा क्या होता है ना कि इस टेक्नोलॉजी स्टैक के बहुत सारे यूजर ग्रुप्स होते हैं, Okay. जैसे ओरेकल यूजर ग्रुप है, जावा यूजर ग्रुप है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं और कस्टमर्स भी होते हैं। Okay. तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे जाके आप बहुत ही नीश लोगों को आपका नीश एक्सपर्टीज दिखा रहे हो। Okay. तो ये सब ग्रुप्स को अप्रोच होना, उनका मेंबर बनना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट जाता है उसके अंदर, Hmm. बट आई थिंक दैट इज द मोर ऑर्गेनिक एंड मोर सस्टेनेबल मार्केटिंग यू डू Hmm. टू शो योर एग्जैक्ट एक्सपर्टीज, Okay. कि वहाँ पे दे आर वेरी टेक्निकल पीपल, कस्टमर साइड से भी वो 20-20 साल पे वो सिस्टम पे काम करते हो, Correct. दे आर वेरी प्रो, Correct. सो यू हैव टू शोकेस योर एक्सपर्टीज टू दोज एक्सपर्ट्स। Correct. तो इसके लिए आपको वो एक्सपर्ट नेटवर्क का हिस्सा होना जरूरी है और उनको शोकेस करना कि आपका क्या है So you knowledge। need to be at the right place among the right people Hmm. to understand what's going in the industry and plus to get the early leads or the early signs. Yeah. Okay. Digital presence, digital marketing, ये सब कितना मायने रखता है when it comes to your ticket size? Yeah, so see, digital presence is of course needed. There's no second thought about it, because अगर आपने मुझे किसी को रेफर किया तो पहला आदमी जाता है चेक Check करेगा। पहले उसका वो वेबसाइट देखेगा, Correct. वो लिंक्डइन देखेगा, Correct. ये एक्सपोर्ट है और व्हाट काइंड ऑफ कुछ आर्टिकल्स, क्या टेक्नोलॉजी, कहाँ पे क्या मिल रहा है इसके बारे में। Correct. सो दैट्स वेरी हैबिचुअल नाउ Correct. टू एनीबॉडी। Correct. तो इसलिए लिंक्डइन पे प्रेजेंस होना या समवेयर फुटप्रिंट्स होना, वहाँ से उसको एक कंफर्मेशन मिलेगा या जस्ट एक
के मिलेगा, हाँ ये यहाँ पे भी दिख रहा है इसका, तो कुछ तो है, इट्स नॉट वेरी अननोन थिंग। और जो कंपनी बंदा खुद बोल रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, ही इज़ नॉट देयर ऑन द टेक्नोलॉजी, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है कि अरे कौन ये लोग, ये खुद को पता नहीं, मतलब कहीं दिख भी नहीं रहे तो ये हमको। तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रेजेंस इज, आई मीन अभी दे ये होना है कि नहीं होना, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब मतलब वो तो रहना ही है, वो तो रहना ही है रहना या as a sales head in your organization, how do you keep your targets? आप अपने टारगेट्स कैसे सेट करते हो, और फिर अगर वो टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे तो फिर आपका फॉल बैक इफेक्ट क्या रहता है, आप उस टारगेट को किस तरीके से मेजर करते हो, और टारगेट के प्रोसेस को कैसे मॉनिटर करते हो? या तो जैसे अभी टारगेट क्या होता है कि तो हम ऐसे मेजोरिटी में लीड जनरेशन में नहीं जाते, जैसे 1000 लीड्स 2000। ओके, हमारा टारगेट थोड़ा सा हंटिंग टाइप होता है, ओके, व्हेन यू हंट द प्रे, जैसे 2-3 क्लाइंट्स को हंट करके ओके देयर इज सम नीड देयर, तो उनका थोड़ा जॉब प्रोफाइल चेक करके कुछ पोस्ट कर रहे हैं क्या वो लोग, या कैसे रेफरेंस आता है, तो हमारा अप्रोच उस टाइप से होगा। ओके, तो हम लोग फिर उस कस्टमर का भी टैप करने के लिए, बट एक कस्टमर नहीं, एक सब एटलीस्ट 3-4 कस्टमर्स का साथ, मतलब अलग अलग इस पे काम होना चाहिए, वरना अगर वो नहीं मिला तो भूखे रह जाओगे। तो जैसे अभी हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज आई है, तो हम उनका पूरा स्टडी करके कि मतलब वो द पीपल, तो उनका थोड़ा जॉब प्रोफाइल स्टडी करके क्या एक्सपीरियंस है उनका, किस लेवल के वो लोग अपने से इंटरेक्शन करेंगे और किस डेप्थ पे वो लोग जाएंगे टेक्निकल टॉक्स, तो उसका थोड़ा स्टडी करके फिर उस हिसाब से हम थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो जो रेफरेंस का बंदा आया है तो उसको भी उतना कॉन्फिडेंस देना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर उसने कोई ऐसा कनेक्ट दिया कि जो काम का नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा तो उसको उतना वैल्यू नहीं रहेगा, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिज रेपुटेशन आल्सो। तो उस तरीके से हमने अभी अप्रोच किया और उसमें से 2 सक्सेस हो गए, दे अंडरस्टूड एंड दे गिव अस द प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा हंटिंग टाइप है, थोड़ा सा नॉट, so it's more of not setting targets and seeing how much opportunities get generated and how much you convert, और is it कोई रेवेन्यू टारगेट है कि हमको इतने डॉलर्स एनुअल बिजनेस करना है, उसके लिए लीड जनरेट करने हैं, या उसके लिए? हाँ, तो इट्स ऑलवेज रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो पहले तो ऑफकोर्स पैसे का टारगेट होता है, इस साल इतने पैसे कमाने, तो पैसे कौन दे सकता है अपने को, क्योंकि वो रेशियो जो है हमारा, हम इतने बड़ी टीम नहीं है कि कल 10 प्रोजेक्ट एक साथ उठा के वो रेवेन्यू टारगेट हम लोग मैच कर देंगे। तो आप कितना डिलीवर कर सकते हो उसके हिसाब से आप सोचते हो कि आपने करा, बट वो टारगेट समझो, अगर आपने समझो एक अमाउंट का टारगेट समझो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा, बट उतने अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हुए, तब आपका क्या अप्रोच रहता है? नहीं, अभी जैसे इस साल का हमारा जो टारगेट है वो अचीव होने के लिए कौन से टाइप के कस्टमर्स है, फिर उस टाइप की लीड जनरेशन इन द सेंस नॉट द जिस तरह से कोल्ड कॉलिंग और ईमेल्स करना, बट उस टाइप के रेफरेंसेस, उस टाइप के चैनल पार्टनर्स उनको, तो व्हाट वी आर डूइंग इज ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं हम लोग। So more of building up your networks to see how much they are working for you, how much they are getting leads for you or references for you, and then setting up higher aspirational targets for every year based on what you have done in the last year. Is it how it works? या तो पर अभी कैसे है कि अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ऐसी आई कि जो हमारा टेक्निकल फोर्टे नहीं था, हाँ, बट मार्केट अच्छा था, तो हमने उसके लिए क्या किया, टेक्नोलॉजी में फिर ऐसा थोड़ा सा चेंज किया। सो दे आर लाइक नॉन ओरेकल ओपन सोर्स सिस्टम्स, पर उसमें वो अपॉर्चुनिटी थी, तो वी डिड आवर प्रोसेस कि ये क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है इसमें, एंड वंस वी अंडरस्टैंड कि क्वालिफाई होता है, तो इट वाज नॉट विद आवर
core technology, but we still deliver that. Hmm. So ऐसे भी opportunities you have to take Hmm. where you are sure that you can deliver it, Hmm. but it's not in your core strength. Hmm. थोड़ा सा comfort zone के बाहर जाके भी वो you have to do it. Being the CMO, Chief Sales Officer or Sales Head in the organization, what are the KPIs, what are the matrices, what are the key performance indicators that you keep for yourself and keep tracking on your success, on your progress? So ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप हमेशा चेक करते रहते हो? So that's a very good question क्योंकि सेल्स ही पूरा बिजनेस चलाता है. सेल्स इज द इनकम ऑफ एनी बिजनेस. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो मेरा टारगेट है इस साल का या क्वार्टरली, पहले वो उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है कि इस क्वार्टर में हमारा इतना रेवेन्यू लाना है, इतने हमारे एक्सपेंस है, इतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, इतना हमारा R&D क्लियर रखना है और इतने में हमारा घर चलाना है. तो फॉर मी इस KPIs की कितने लीड्स मेरे पास आ रहे हैं, एटलीस्ट आई हैव इस क्वार्टरली 10 लीड्स तो आने चाहिए, उसमें से एटलीस्ट 2 या 3 कन्वर्ट हो सकते हैं. उसको प्रोजेक्ट में लाने के लिए कम से कम अगले 3-4 महीने जाने वाले हैं उसके अंदर. तो ये सब सोच के KPIs के अंदर तो आई हैवंट सेट, तो मैं कुछ MBA वगैरह किया नहीं हूँ, तो आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट सिंपल एक नेचुरल इस पे के इस क्वार्टरली मुझे इनके लीड्स आने चाहिए कहीं से भी, भले वो रेफरेंस से आए, भले वो मेरी कोई पोस्ट पढ़ के आए या मेरे चैनल पार्टनर से आए, और मैं खुद होके या फिर मार्केट में जाऊंगा. तो मेरे कुछ अभी इस बार मैंने किया फर्स्ट टाइम कि आई वेंट टू सम अदर पर्सन, आई पिच हिम द प्रोडक्ट, किया ग्रेट, नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट. तो उस प्रोडक्ट में मुझे इतना मिलना चाहिए, तो ये सब कैलकुलेशन करके आई अप्रोच्ड हिम, ही एग्रीड टू इट, एंड देन नाउ सो इस क्वार्टर का या अगले क्वार्टर का हमारा टारगेट जो है वो ऑलरेडी मीट हो चुका है. तो बहुत बार ऐसा कोई फिक्स वे नहीं है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएंगे. यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग कि हाउ आई शुड अप्रोच कस्टमर. अगर मेरा कोई प्रोडक्ट अभी का जो मेरे एग्जिस्टिंग कोई ले नहीं रहा है, तो आई शुड गो एंड आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके बोलना चाहिए. जैसे हमने किया तो सक्सेस हो गया. अभी लेट्स सी. I don't know what marketing budgets you work on, but say अगर hypothetically मैं बोलूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए का marketing budget to spend in a month, what would be the core areas where you would want to invest in terms of your marketing? तो पहला मार्केटिंग के लिए मैं, अगर इट्स इनिशियल माय स्टार्ट माय बिजनेस एंड आई हैव सर्टेन बजट, तो इनिशियली जो 5 लाख मैं खर्च करूँगा एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, कंटेंट रिच, नॉट लुक वाइज, Okay. बट इट शुड शो ऑल माय एक्सपर्टीज. Okay. तो कोई भी आया तो उस पर एग्जैक्ट समझनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, Okay. what I can deliver and what vertical I am targeting. So I think website is very important. Second thing is definitely मेरे services या जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो भी मुझे बिजनेस करना है उसको पैकेजिंग कैसे करूँ मैं. तो वो पैकेजिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं कल मार्केट में जाऊँगा तो मैं बेच क्या रहा हूँ, तो टू हैव सम एट्रीब्यूट्स, टू हैव सम नेम टू इट, Right. तभी जाके मैं उसको बेच पाऊंगा. Right. तो उसके ऊपर मेरा मोस्टली बजट जो होगा वो खर्च होना चाहिए. Okay, so you said that आपके digital presence पे mostly, और आपके the way you are going to package your things to show it to your early leads and references, उस पे आप आपका Yeah, I mean there's every service that we deliver has to be packaged. Okay. Right. Nice. So, Rujit, we explored so many roles that you play as an entrepreneur. We saw
the HR, finance, marketing, sales side of your decision making. What is that one role that you enjoy a lot that naturally comes to you, and what is the one role that you feel that is very important for any organization? That is the strategy on how to grow your business. Like, you have to take some strategic decisions. कि इस मार्केट में एंटर होना है कि नहीं होना है, या ये चीज़ अभी हमें छोड़ देनी चाहिए, इट्स नॉट गिविंग अस, सो डिटैच कुछ चीज़ें वो करना पड़ता है. सो बिजनेस का जो एक ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि कितने लोग हमारे साथ आने चाहिए, हमारा पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट R&D का क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए, व्हाट अप्रोच वी शुड हैव. तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन प्लेस. करेक्ट. सो ये तो हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड दैट गोज इन, कि पूरा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर और अ क्लियर आइडिया और द रोड मैप दैट यू वांट टू डू. बट इसमें कौन सा रोल है आपका? फाइनेंस के एंगल्स लेंस से आप ये देख रहे हो, मार्केटिंग के लेंस से देख रहे हो, सेल्स के लेंस से देख रहे हो, वो बहुत मायने रखता है. और जिस तरीके का आपका जिस अप्रोच की तरफ है, जिस लेंस की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस इंक्लाइनमेंट है, उस टाइप का डिसीजन आप ज़्यादा लोगे. मे बी सम पर्सन हु इज मोर ऑफ अ सेल्स गाय वुड थिंक ऑन रेवेन्यू जनरेशन rather than marketing, or maybe rather than financial growth. Whereas somebody who is more of a finance guy would say कि बस ROI पे ज़्यादा फोकस रखेगा, या रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस रखेगा, एसेट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस रखेगा. मार्केटिंग का बंदा होगा तो वो वैल्यू डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रखेगा, वो वैल्यू ड्रिवन करने की कोशिश करेगा हर एक चीज़ को, कि इसमें मेरे ब्रांड को क्या बेनिफिट मिल रहा है, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है. तो आप ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अपने दिमाग में चलते हैं, आपके माइंड में कौन सा रोल सबसे हैवी, सबसे मेजर पार्ट रखता है? मेरे इसमें तो डेफिनेटली सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सेल्स इज, जैसे मैंने बोला कि पैसा लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत बार ऐसा चीज़ें होता है कि क्लाइंट को आपको कुछ कमिट करना पड़ता है. भले आपके ऑपरेशन वाले चिल्लाते कह रहे हैं तुमने क्या बोल रहे हो, तो ऐसा होता ही नहीं है, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं करना. बट देखो, मैं कस्टमर को हर चीज़ के लिए मैं ना नहीं बोल सकता. I have to balance somewhere. And then you have to get that thing done. So if you promise, you have to get that thing done. Yeah, तो उस चीज़ में बहुत मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर एक रूथलेस होके चलना पड़ता है कि नहीं ये करना है आपको. I don't know how, बट अगर कस्टमर चाहता है तो भले 100% नहीं, बट एटलीस्ट वी शुड एबल टू डिलीवर 50-60% ऑफ दैट. और बाकी का फिर हम लोग बोलेंगे प्रोसेस में, या उसको भी समझ में आता है कभी क्लाइंट को कुछ चीज़ करने के बाद यार ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है ये वैसे चल रहा है, तो दैट इज बेटर हो गया. After being a part of ethics for so long, क्या कंटिन्यूसली अभी भी आपके दिमाग में बोर्ड मीटिंग्स चलती होती है? क्या कंटिन्यूसली वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द सेल्स एंड द फाइनेंस एंड HR एंड मार्केटिंग, ये चल रहा है? हाँ, चलता है, क्योंकि सी आई हैव बीन सोलोप्रेन्योर बिफोर दैट. तो आई हैव जिस्ट ऑफ ऑल वर्टिकल्स. तो वो चीज़ अच्छा भी है कि जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेते तो हम लोग उसके बारे में भी सोचते हैं. तो एटलीस्ट बीइंग सोलोप्रेन्योर एक चीज़ अच्छी होती है कि आपको सबको पता होता है कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपके ऊपर होता है. तो यू जस्ट डोंट फॉलो योर ओन वर्टिकल, तो बाकी के वर्टिकल्स के बारे में भी सोचते हो. आई थिंक दैट्स अ गुड एडवांटेज. आपने बताया कि आप मोर ऑफ अ सेल्स पर्सन हो, आप मोर ऑफ अ सेल्स लाइन से चीज़ें देखते हो. What was the one core challenge as a salesperson that you generally face in your business, and how do you tackle that? See, main challenge as a sales क्या होता है कि
एक तो कस्टमर ढूंढना, Mm-hmm. वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, वो सबसे मुश्किल होता है वो। और अभी तो मार्केट इतना क्राउडेड है, तो उसके अंदर अपने आवाज़ को और ऊपर उठाना या उसको चिल्ला चिल्ला के ये करना। दूसरा होता है कस्टमर आ भी गया तो उसको रिटेन करना, उसको बेचना प्रोडक्ट, उसको कन्विंस करना कि पैसे खर्च कर इसके ऊपर, बिकॉज दैट्स अनदर डिफिकल्ट चैलेंज। और तीसरा, ये दो चीज़ें अगर आप क्रॉस करते हो तो आई थिंक यू वन मोस्ट ऑफ द बैटल। अभी उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है आपको जाके जो आपको मन में पता है कि ये पॉसिबल नहीं है या बहुत इसमें अपना लगने वाला है। As a sales person in your organization, as a sales head in your organization, what is the one big achievement that you would like to share with our audiences and people, and what were your key learnings to that in that? एक्चुअली मेरा जो मतलब एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इनिशियली वापस आया तो हमने एक वेबसाइट की थी अच्छी ई कॉमर्स, और कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। Okay. वेबसाइट बहुत अच्छी बनी थी और आप भी उसकी मार्केटिंग का देख रहे थे, Correct. तो वो ऑपरेशनल सक्सेस था पर Okay. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर था वो। Okay. So it was a very good learning for you. या कि पिछले पैसा मतलब वो जज करना सामने वाला कितना कैपेबल है पैसे देने के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay. अभी आप लोग उससे बैलेंस शीट तो मांग नहीं सकते, Correct. Correct. पर वो कुछ ट्रेड्स उसको आपके ऑब्जर्व करने पड़ते हैं उसके, Correct. कि जिससे आपको वो लगे कि At that time, your finance self should pitch in and say, he was, you have to secure your basic cost or Right. initially. इनिशियली तो एटलीस्ट कुछ उससे एडवांस लेना। Finally, Rijit, I wanted to ask you if you had that one advice that you will give us, give our entrepreneurs looking and following us on the podcast, and those who have been there till now listening to you, that one advice that you would like to give them about entrepreneurship or about your core domain. ओके, अभी मैं इतना मतलब बड़ा नहीं बन चुका हूँ किसी को एडवाइस दूँ, बट फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस आई कैन डेफिनेटली से कि एंटरप्रेन्योर्स बनना बहुत अच्छा है। इट्स वेरी टफ जर्नी, but make sure that because of your dreams, your family or your loved ones should not suffer. So you have to take very cautious decision whether you want to jump into that thing, और आपके पास वो कुशन है कि नहीं है। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव बातें करने वाले लोग बहुत होते हैं कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड फलाना फलाना, बट रियलिटी में यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि यहाँ पे फेलियर्स बहुत टफ होते हैं। इट्स नॉट लाइक योर स्कूल टाइम और जॉब में फेलियर होता है तो यू नो देयर इज अ रूम टू इम्प्रूव और इतना इम्पैक्ट नहीं आता है उस चीज़ का। बट एज एंटरप्रेन्योर इफ यू फेल इट कैन बी फेटल मेनी टाइम्स। just don't follow, just don't run behind some positive thinking and all those things. It's very difficult journey. It's very crucial. तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो प्लान भी होना चाहिए कि अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इसमें से बाहर आने का क्या रास्ता है। Okay. That is very important. Thank you, Rijit, for being a part of Yeah. our podcast. We explored multiple hats that you wear as an entrepreneur, and we saw a lot of your processes and decision makings that you do wearing these different hats. Was happy hosting you at the boardroom. Yeah, thank you. Thanks, Anuj. Thank you. Thanks a lot for giving me opportunity to come on your boardroom and express myself.